کیا حال ہے؟ کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ناول گینگسٹر کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہیں جو کہا جائے وہ کرو، وہ کہتا اس کے بازو ایسے ہی دبوچے باہر نکلتا، کار میں بٹھاتا، دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا، کار باہر نکالتا ہے۔ وہ اپنی بازو سے ہلاتی، آنکھوں میں آیا پانی اندر اتارتی، باہر دیکھتی ہے جہاں ہر طرف سبزہ تھا۔ شاید وہ صرف ایک ہی گھر موجود تھا وہاں جو اس کے لیے قید تھا۔ وہ کار اس کے گھر کے باہر روکتا ہے۔ وہ اپنا گھر دیکھتی حیران ہوتی، نکلنے کی کوشش کرتی ہے جب وہ اسی سرحد سے اس کا ہاتھ قید میں لیتا اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کوئی ہوشیاری نہیں، میں یہی ہوں، جلدی سے آخری بار سب سے ملو، اور جو لینا ہو آدھے گھنٹے میں واپس لو، آدھے گھنٹے میں لو اور واپس آؤ، 1 منٹ اوپر نہیں، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں تمہیں شو نہیں کرنا چاہتا۔ غداری کا اصول موت ہے۔ تمہیں اپنی اور سب کی جان عزیز ہو تو ساری سوچوں کو جلا کر راکھ کر دو، وہ نہایت سرد آواز میں کہتا، اسے سیٹ سے پن کرتا ہے۔ وہ کوئی جواب دے کر گھر والوں سے ملنے کا موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی، ورنہ منہ توڑ جواب دیتی۔ ایگل اس کی طرف جھکتا، اپنی کالی سرد و سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے نقاب نیچے کرتا ہے۔ سمجھ آیا؟ وہ تل پر ہاتھ کی شہادت کی انگلی پھیرتا پوچھتا ہے۔ آنکھیں اور لہجہ دونوں میں کوئی احساس نہیں تھا، مگر وہ اندر جانے کو بے چین تھی، اس لیے سر کو ہلکا سا ہلا کر جواب دیتی۔ بول کر وہ شامت نہیں لانا چاہتی تھی تو وہ گال تھپ تھپاتا پیچھے ہوتا ہے۔ اس کی گرفت ہلکی ہوتے ہی دیکھ وہ فل سپیڈ سے نکلتی گھر میں گھستی ہے۔ ایگل اس کی پھرتی پر مسکرا دیتا ہے جب اس کی نظر میرر میں پڑتی ہے۔ وہ خود کو مسکراتا نہ جانے کتنے وقت بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنی شخصیت کے لیے بھول چکا تھا، وہ مسکرا بھی سکتا ہے۔ وہ ایک نظر ہاتھ کو دے کر دوبارہ آئینے میں دیکھتا ہے، مگر خود سے نظریں چراتا سیٹ سے پشت لگائے آنکھیں میچ لیتا ہے۔ وہ نظریں چرا رہا تھا خود سے، خود سے، اپنے جذبوں سے یا دل میں اٹھے طوفان سے۔ ماما بابا! وہ اندر داخل ہوتی بے چینی سے انہیں آوازیں دیتی ہے۔ وہ اس کی آواز سنتے دوڑ کر اس کے پاس آتے، گلے لگاتے ہیں۔ میری بچی، میری جان کہاں تھی؟ اس کی والدہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتی کہتی ہیں۔ اس کے والد اسے خود میں بھینچ لیتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، وہ انہیں تسلی دیتی صوفے پر بٹھاتی کہتی ہے۔ بیٹا تم کیسے آئی یہاں؟ اس کے والد پاس بٹھاتے پوچھتے ہیں۔ وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھی تھی تو وہ انہیں سب بتا دیتی ہے کہ اسے واپس جانا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو پلیز، میں ٹھیک ہوں، اتنی کمزور نہیں ہوں جو حالاتوں کا سامنا نہ کر سکوں۔ مجھے جانا ہے، آپ لوگ پریشان بالکل نہیں ہونا، مجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں جلد واپس لوٹوں گی، مجھے خود پر، اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ یہ سب کس دل سے کہہ رہی تھی وہی جانتی تھی۔ آروش تم؟ اس کا بھائی آتا اسے گلے لگاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس رندے نے کچھ کہا تو نہیں، کچھ کیا تو نہیں؟ اس کا بھائی اسے پریشانی میں سوالات کرتا خوشی سے نہال ہو رہا تھا تو وہ ایک نظر اپنے والد کو دیکھتی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور ہم اس کے سامنے کچھ نہیں، تم اب ٹھیک ہو تو وہ آگے بھی ٹھیک ہی رکھے گا تمہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا بھائی ناسمجھی سے اسے اور اپنے والد کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بتا کر اس آروش کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں خلاف تھے ان کے اس فیصلے کے۔ وہ اور آروش کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیٹا انسپیکٹر جلد کچھ کرے گا، ہم تمہیں ان لوگوں میں زیادہ وقت نہیں چھوڑیں گے، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے بولتے ہیں تو وہ آنسو پر قابو نہ پا کر اپنے ابو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ وہ اسے پیار سے خود سے علیحدہ کرتے، آنسو پونچھتے، سر پر بوسہ دیتے ہیں۔ امی اور بھائی ناراض ہیں، وہ ان کے سینے سے لگی کہتی ہے۔ کب تک رہیں گے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں انہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں جو لینا ہے وہ لے لو، وہ اسے کہہ کر سر پر بوسہ دیتے نکل جاتے ہیں۔ وہ کھڑی ہوتی اپنے کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے بیگ اٹھاتی ہے، وہ بیگ چیک کرتی باہر نکلتی ہے اور اپنی امی کے گلے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو پونچھتی وہ بھائی سے ملتی اپنے والد کے گلے لگتی ہے۔ میری بیٹی! اس کے جاتے اس کی والدہ بیٹھ کر روتی اسے پکارتی ہے، مگر ان کا شوہر انہیں دلاسا دیتے ہیں۔ آروش آ کر کار کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتی ہے، انداز ایسا تھا جیسے وہ اکیلی ہو کار میں۔ ایگل کار سٹارٹ کرتا، ایک نظر اس پر ڈالتا، کار روڈ پر ڈالتا ہے۔ ابھی کچھ دیری گزری تھی جب پیچھے سے گولیوں کی بوچھار شروع ہوتی ہے۔ آروش کے گلے سے دبی دبی چیخ نکلتی ہے۔ ایگل اس کا ہاتھ پکڑے اپنی گود میں بٹھاتا ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے آروش، ٹھیک ہوگی؟ پتہ نہیں کیسا شخص ہے وہ، آپ نے کیوں جانے دیا؟ آروش کی والدہ سر پکڑے کہہ رہی تھی۔ وہ کسی کے سمجھانے پر کیسے سمجھتی، بیٹی کو کیسے کسی کے حوالے کر کے سکون میں رہتی؟ تم بس اللہ سے دعا کرو، اس کے والد انہیں بس تسلی ہی دے سکتے تھے۔ ہاں بس وہی سہارا ہے ہمارا۔ وہ آنسو پونچھتی کمرے میں جاتی ہیں۔ وہ ڈرائیونگ کرتا بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا اور ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر کچھ چیک کرتا مطمئن انداز میں ڈرائیو کرتا ہے جب اچانک پیچھے سے فائرنگ شروع ہوتی ہے۔ خاموشی کو چیرتی وہ آوازیں سناٹے میں گونج رہی تھی، مگر ایگل بالکل ایزی بیٹھا تھا۔ اس کے اطمینان میں
اس کے اطمینان میں خاطر خواہ کمی نہیں آتی. آروش کانوں پر ہاتھ رکھے دبی دبی چیختی ہے. وہ آروش کی وجہ سے تو نکل نہیں پا رہا تھا ورنہ اب تک وہ سب انجام تک اپنے پہنچ چکے ہوتے. وہ اسے گھبرائے دیکھ کر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے ایک ہاتھ سے اس کے بازو پکڑے اپنے پاس کھینچتا ہے جسے وہ توازن برقرار نہ رکھ پاتی. سیٹ سے اٹھ کر اس کی گود میں گرتی ہے مگر جلد ہی دوسری سیٹ پر بیٹھتی ہے. ایک ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا. یہ کون ہے؟ وہ پیچھے دیکھتی سر نیچے کرتی اس کی طرف جھکتی پوچھتی ہے. گاڑی بلٹ پروف ہے. وہ اسے ٹھیک سے بٹھاتا ہے سیٹ بیلٹ لگاتا ہے اس کا سوال نظر انداز کرتا اسٹیئرنگ سنبھالتا موڑ کاٹتا ہے. وہ اسے غصے سے گھورتی دوبارہ کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہے. جب وہ سرعت سے کار روکتا ہے اس کی طرف مڑتا ہے. اس کے رکنے سے اس کے پیچھے آتی گاڑیاں بھی رک گئی تھی. وہ شاید اس کے نکلتے اسے ختم کرنے کے تعاقب میں تھے مگر وہ شاید اس شخص کو جانتے نہیں تھے جو اپنی موت کے لیے یہاں تک آ گئے تھے. تم کر کیا رہے ہو؟ وہ اس کے کار روکنے پر آنکھیں سکیڑتی غصے میں پوچھتی ہے مگر وہ اس کی طرف جھک کر پہلے کی طرح سیٹ سے پن کرتا ہے. شش. وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا کہتا کچھ دیر آنکھوں میں دیکھتا ہے. پیچھے ہوتا ہے. وہ اس کے پیچھے ہٹتے ایک گہرا سانس لیتی ہے جو اس کے قریب آنے سے روکے ہوئے تھا. وہ ایک نظر پیچھے اپنے شکار دیکھتا ہے. اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے نیچے کرتا ہے جس سے وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے. جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں نکلنا. وہ نرم لہجے میں کہتا پیچھے ہوتا دروازہ کھولتا ہے. جو اس نے سوچا تھا وہی. وہ سب کچے کھلاڑی تھے. اس کے دروازہ کھولتے وہ فائرنگ سٹارٹ کر چکے تھے مگر وہ اتنی پھرتی سے باہر نکل کر ایک چیز ان کی طرف پھینکتا ہے جس سے ہر طرف بس دھواں ہو جاتا ہے. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے مطمئن انداز میں کھڑا وقت دیکھ رہا تھا. وہ سب آنکھیں مسلتے فائرنگ کرتے ہیں مگر وہ آرام سے بچ کر اپنی گن نکالتا. ان سب میں سے کسی کا دماغ یا باقیوں کی شارگیں اڑا چکا تھا. وہ مطمئن ہو کر آروش کی سائڈ آتا ہے جو آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی. وہ بھی اپنی سائڈ سے دروازہ کھولتی باہر نکلتی ہے. وہ اسے گھور کر اس کی طرف بڑھتا ہے جب ایک گولی اس کا بازو چیر دیتی ہے مگر وہ پرواہ کیے بنا آروش کو پکڑے جھاڑیوں میں لے جاتا ہے. باہر کیوں آئی؟ وہ سرخ کے تنی رگیں لیے اس کی طرف چھپ کر غصے میں پوچھتا ہے. مجھے لگا اب آ سکتی ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہتی ہے مگر جب اس کی نظر خون بھرے ہاتھ پر جاتی ہے تو اس کے نزدیک ہوتی بازو دیکھتی ہے. تمہیں گولی لگی ہے؟ وہ اسے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی کہتی ہے. وہ جو وہاں موجود آدمی دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ رکھنے پر اسے دیکھتا ہے مگر وہ اس کے کان کے قریب جھکتا ہے. یہاں سے 1 انچ نہیں ہلنا ورنہ میں خود تمہارے لیے اسے بھروں گا. وہ گن آگے کرتا اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتا اٹھنے لگتا ہے. وہ اسے کھینچ کر واپس بٹھاتی ہے. اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا ایک رومال جو اس کی کلائی پر بندھا تھا اس کا ہاتھ ہٹاتی زخم پر باندھتی ہے اور پیچھے ہو کر بیٹھتی ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ان سب کو سمجھنے کا موقع دیے بنا سب کو ڈھیر کرتا آروش کا ہاتھ پکڑتا کار میں بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتا ہے. جب خاموشی میں گولی چلنے کی آواز گونجتی ہے وہ پہلے اپنے پیچھے پڑے آدمی کو جو ٹانگ پکڑے کر آ رہا تھا پھر آروش کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں گن تھی. وہ اسے گن لیتا اس شخص کے دل پر گولی مارتا کار میں بیٹھتا کار سٹارٹ کرتا ہے. وہ بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی. ایگل اسے ایک نظر دیکھتا اس کی نظر میں لائے بغیر پانی کی بوتل میں ایک گولی ڈالتا اسے دیتا ہے اور اسے پانی لیتی نقاب نیچے کرتی جلدی پیتی ہے. اگلے ہی لمحے اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوتا ہے. اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے اور وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو جاتی ہے. ایگل پانی کی بوتل پیچھے پھینکتا اس کی طرف جھک کر نقاب اوپر کرتا ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہوتا ہے. وہ چکراتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولتی ہے. وہ سر پکڑے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتی ہے اور آنکھیں صحیح سے کھولتی خود کو موجود جگہ پر دیکھتی ہے مگر انجان جگہ پا کر سرت سے بیٹھ سے اٹھتی ہے. شکر تمہیں ہوش تو آیا. ایک نسوانی آواز پیچھے سے آتی ہے. وہ بول کر اسے دیکھتی ہے مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر پہچانتی اس کے پاس جاتی ہے. میں کہاں ہوں؟ وہ محسا سے بے چینی لیے پوچھتی ہے. تم اپنے گھر ہو. وہ اسے بیڈ پر بٹھاتی جواب دیتی ہے. کون سے گھر پلیز بتاؤ. وہ اسے اپنے پاس بٹھاتی پوچھتی ہے. ریلیکس اپنے شوہر کے گھر. چلو چینج کرو اور کھانا کھانے چلو. وہ اسے پیار سے کہتی بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتی ہے. واش روم میں گھساتی ہے مگر وہ دروازہ بند کرنے سے پہلے رکتی ہے. میں کب سے بے ہوش تھی. وہ اسے اندر ہی کھڑے پوچھتی ہے. 16 گھنٹوں سے. کیا؟ وہ آنکھیں حیرت سے کھولے پوچھتی ہے. مگر میں بے ہوش کیسے ہوئی؟ ایگل نے میڈیسن دی تھی. وہ اسے ویسے ہی پیار سے جواب دیتی ہے تو وہ حیران ہوتی دروازہ بند کرتی ہے. محسا اس کی معصومیت پر مسکرا دیتی ہے اور بیٹھ کر اس کا ویٹ کرتی ہے. عروش بلیک جینز اس پر بلیک فراک گھٹنوں تک پہنے ہاتھ میں دوپٹہ لیے گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلتی ہے. محسا وہیں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اسے پھیکی سی اسمائل پاس کرتی میرر کے سامنے جاتی ہے. دوپٹہ پاس رکھتی وہ بالوں کو جھٹک کر پیچھے کرتی ہے. واو تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. محسا اس کے پاس آتی دل سے تعریف کرتی ہے جس پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے قبول کرتی ہے. عروش بالوں میں کنگھی کرتی پاس سے دوپٹہ اٹھاتی حجاب کی طرح لیتی ہے اور بالوں کا میسی سے جوڑا بنا چکی تھی. چلے. محسا اسے تیار دے کر پوچھتی ہے تو وہ سر کو ہلکا سا خم دیتی اس کے ساتھ باہر کی طرف قدم لیتی ہے. یہ گھر تو اس کے گھر سے کافی بڑا تھا اور یہ پاکستانی سٹائل میں بھی نہیں تھا اور آس پاس دیکھتی سوچتی ہے کیونکہ وہ بلیک اور وائٹ کلر میں پینٹ کیا گیا تھا اور لوگ ڈائننگ
वो लोग डाइनिंग टेबल तक पहुंचते हैं जहाँ वो और साथ मूसा और अहान मौजूद थे। मैसा उसे ईगल के साथ वाली चेयर पर बिठाती उसके साथ बैठती है। वो ईगल का बाजू देखती है जहाँ सफेद पट्टी बंधी थी। वो जीन्स के साथ हाफ टी शर्ट पहने हुए था जिससे कसरती बाजू नुमाया था। हम अपनी प्रिंसेस को याद तो है ना, मूसा रूही से पूछता है, जिस पर आरुष जवाब देती मैसा बोल उठती है, तुम्हारी शक्ल है याद रखने वाली। जिस पर आहान हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखता है। जी मूसा झटक कर मैसा को घूरता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके जिन शोहर से तो बेहतर हूँ, वो अकड़ कर कहता है। जिस पर मूसा और आहान हंस हंस कर लूट-पुट होते हैं। पागल हो गए हैं ये, खूबसूरत लोगों की कोई वैल्यू नहीं। मूसा इन लोगों को पागलों की तरह हंसते देख आरुष से कहता है, जिस पर वो बस मुस्कुरा देती है क्योंकि वो कल के वाक़े से परेशान थी और वो कहाँ है ये भी नहीं जानती थी और सब तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे सब नॉर्मल हो। वो जल्दी टेम्पर लूज करने वालों में से नहीं थी, ना वो कभी किसी पर गुस्सा निकाल कर बदतमीजी करती थी। वो उनके साथ थोड़ा नॉर्मल थी क्योंकि उसे वो बुरे नहीं लगे थे। उन सबकी नजरों में इज्जत थी जैसे वो इन्हें कुछ कह भी नहीं पाती थी। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। दिमाग कुछ कह रहा था तो दिल अलग बिर था। वो अपनी सोचों से मूसा की आवाज से निकलती है, मेरी बहन बताओ, इस डाइन और इस वैम्पायर को। वो मासूम शक्ल बनाकर मेसा को डाइन और आहान को वैम्पायर बना चुका था, जिस पर वो उसे खूंखार नजरों से घूर रहे थे। मैं तो कह रहा था मेरी क्यूट सी बहन को इसका मासूम शक्ल वाला भाई कैसे भूलेगा। वो आरुष को देखकर मेसनी शक्ल बनाकर कहता है, जिस पर आरुष हंस हंस कर लूटपुट होती है। उसे हंसता देखकर मैसा और आहान भी मुस्कुरा देते हैं। आहान उसे पेट पर जोर से मुक्का मारता है, ओए कमीने शर्म कर, तुझसे 15 साल छोटा हूं मैं, मासूम। जिस पर आरुष आहान मैसा होंक बने उसे देखते हैं, जिस पर वो मुस्कुराकर खाना शुरू करता है। अब मुझसे भी छोटे हो, आरुष नाक फुलाए कहती है। उसके कहने पर ईगल जो खामोश तमाशाई बना खा रहा था खांस कर हंसी रोकता है क्योंकि वो मूसा से ऊपर की चीज थी। चलो इसे कोई टक्कर देने वाला तो आया। अरे नहीं प्रिंसेस, इस बूढ़े से हम सब छोटे हैं। वो बात मसनूई डर से संभालता है। नहीं, आपने हम सबको खुद से बड़ा बताया, इसलिए मैं सिर्फ आहान भाई मैसा आप ही को जानती हूँ, आपको नहीं भाई साहब। वो बदला लेती मुस्कुराकर मैसा और आहान को देखती है। यस माय डॉल, आहान आरुष को प्यार से कहता, मूसा को कोहनी मारता है। मैसा और आरुष स्माइल पास करते हैं। वाह वाह, मुझे पराया कर दिया, तुम्हें अब चॉकलेट नहीं मिलेगी। वो उसकी दुखती रग पर हाथ रखता है। आप मुझ मासूम के साथ ये जुल्म करोगे, आपको रहम नहीं आएगा। वो आंखें पटपटाकर मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती बोलती है, तो बच्चे जिसे जानते नहीं उसे चीज नहीं लेते, और तुम मुझे नहीं जानती। वो हरी झंडी दिखाता है, चॉकलेट्स निकालकर खाना शुरू करता है। जिस पर वो मासूम शक्ल बनाकर आहान को देखती है तो वो इसे सारी चॉकलेट खींचकर उसे दे देता है। वो बस अरे अरे करता रह जाता है और आरुष चॉकलेट ईगल की तरफ रखती है। वाह चालाक बहन, अपने जिन को इस हिफाजत पर लगा दिया। मूसा के कहने पर वो और चॉकलेट को ईगल की तरफ खिसकाती है। ईगल उसकी हरकत पर मुस्कुरा देता है। वो हाँ में ऊपर नीचे करके सर हिलाती है। सब उसकी हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। खाना शुरू करो सब, ईगल खाने की तरफ मुतवज्जा करता है और आरुष को खुद डाल कर देता है, जिस पर मूसा की जबान में खुजली होती है मगर ईगल की घूरी पर खामोश रहता है। शियान के लिए एक गाना जहन में आ रहा है। वो आहान की तरफ झुकता कान में कहता है, कौन सा? उसे देखकर हल्की आवाज में पूछता है तो वो कान में झुककर बताता है, ओ मैं हूँ जोरू का गुलाम, ओ मैं हूँ जोरू का गुलाम। जिसमें आहान मुश्किल से कहकर उठते उसे घूरता है। आरुष खाने के बाद मैसा के साथ लिविंग एरिया में बैठती है। वो जिसको घर समझ रही थी वो तो महल था। वो तीनों पता नहीं कहाँ गए थे। वो खामोश बैठी थी जब उसे अपना बैग याद आता है जो वो घर से लाई थी। मैसा आप ही? वो मैसा को बुलाती है जो फोन पर कुछ टाइप कर रही थी। उसकी पगार पर वो सवालिया नजरों से उसे देखती है। वो मेरा एक बैग था, वो कहाँ है? वो मेरे पास है, तुमने मेरी चॉकलेट ली, मैंने तुम्हारा बैग मूसा कहीं से नाजिल हुआ था। मैसा के जवाब देने से पहले कहता है, वो दे दो। वो रास लहजे में कहती है, अरे प्रिंसेस डंगे की चोट पर मांगो, ऐसे उदास होकर नहीं, जाओ मैसा ले आओ। उसे उदास देखकर उसे उसके पास आता कहता है और तंग करने को छोड़ता मैसा से कहता है तो वो उठकर एक कमरे में जाती है और अगले मिनट वो बैग लिए बाहर आती है। वो मुस्कुराकर बैग लेती चॉकलेट मूसा को देती है। अरे वापस क्यों कर रही हो? वो उसे चॉकलेट वापस करते देख पूछता है। मैं छीन कर चीज नहीं लेती। वो हाथ ऐसे ही रखे देखकर कहती है, अरे तुम मुझसे कुछ भी छीन सकती हो, पहली बार तो इतनी प्यारी बहन मिली है, नखरे करो, तंग करो, लड़ो मेरे साथ। और ये क्या, ये सब चॉकलेट्स तुम्हारी हैं। वो और जेबों से चॉकलेट हाथ में भर भर कर निकालता उसकी झोली में डालता है। मैसा उसकी हरकतों पर कहका लगा देती है, मैं सारी ले लूं? वो आंखें पटपटाकर पूछती है। आखिर कमजोरी जो थी चॉकलेट, वो सारी चॉकलेट गोद में रखे सही से रखती है। हाँ और भी ला दूंगा, बस उदास नहीं होना, ओके? वो शफकत से सर पर हाथ रखता कहता है तो वो हल्की सी मुस्कुराहट उछालती है। चलो तुम आराम करो। मैसा उसे उठाती कमरे में ले जाती है। मैसा उसे रूम में छोड़कर जा चुकी थी।
वो उस वक्त बैठी बैग पर थोड़ी टिकाए न जाने किन सोचों में मसरूफ थी। जब वो जेब में हाथ डाले अंदर दाखिल होता है, मगर वो उसकी मौजूदगी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो ऐन उसके सामने आ खड़ा होता है। वो सामने किसी की मौजूदगी महसूस करती, अपनी नजरें ऊपर उठाती है। उसकी आंखें इकल की आंखों से टकराती हैं। वो आंखें सफेदती उसे घूरती है और बैग में कुछ ढूंढने के लिए हाथ डालती है। जब उसे फोन मतलूबा जगह नहीं मिलता तो एक और जगह तलाश करती है, मगर उनकी कार्रवाई समेती उसके सामने खड़ी होती है, जो उसकी एक एक कार्रवाई देख रहा था। मेरा मोबाइल, वो दांत पीसती पूछती है, जिस पर वो मोबाइल सामने करता है। वो हाथ आगे करती लेने की कोशिश करती है, मगर वो ऊपर कर देता है। वो पहले उसके सीने तक आती थी और अब वो फोन उसके पहुंच से काफी ऊंचाई पर था। दो, वो नाक फुलाते कहती है, जिस पर वो कंधे उचका देता है, जैसे कह रहा हो सामने है ले लो। वो उसकी हरकत को चैन लेती बेड पर खड़ी होती है और एक हाथ कंधे पर रखे उस पर झुककर दूसरा हाथ ऊंचा करती है, लेने की कोशिश करती है। वो तो उसके करीब आने से स्टिल हो चुका था, जिसकी वजह से वो फोन खींचती उतरने की कोशिश करती है। जब पाँव डिसबैलेंस होता है, जिससे उसके बाजुओं में गिरती है। उसके पाँव बेड पर और बाकी वो उसके बाजुओं के सहारे थी। फोन बेड पर गिर चुका था। वो करीब झुकता उसे पूरा बाजू में उठाए नीचे खड़ा करता है। वो नीचे खड़ी होती जल्दी से फासला कायम करती है और अपना फोन उठाती दोनों हाथ पीछे कर देती है। उसकी इस हरकत पर उसके होंठों पर तबस्सुम बिखरता है। देखो, मेरा फोन नहीं लो, मैं पुलिस को कॉल नहीं करती। वो दो कदम पीछे लेती उसे मस्के लगाने के लिए कहती है, तुम्हारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो उसकी बात को मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता है, तो मेरे फोन में क्या लूडो खेलनी है? वो कहाँ अपना मजाक बर्दाश्त कर सकती थी। तभी हुए अंदाज में कहती है, जिस पर आईब्रो उचकाता उसे देखता है, जैसे उसकी दिमागी हालत पर शिबा हो। वो बस आंखें घुमा देती है। वो फौरन अपने और उसके बीच फासला तय करता, एक हाथ कंधे से गुजार कर पीछे से गर्दन पकड़े झटका देकर चेहरा अपने सामने करता है। इन नजरों को मुझसे मत घुमाना, और ये फोन दे रहा हूँ, कोई गलत हरकत नहीं, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े उसे वार्न कर रहा था, जिस पर वो आंखों को छोटा करके दिल में पागल और दीगर अलकाबात से नवाजती जबान से लठमार अंदाज में ओके कहती है। कोई और उस लड़की को ईगल से ऐसे बात करते देखता तो गश पर गश खाता। वो उसके अंदाज पर मुस्कुराहट रोकता, उसे छोड़ता ड्रेसिंग रूम में घुसता है। पीछे वो हवा में मुक्का मारती, मुंह फुलाए बाहर निकलती है। अभी नमाज में टाइम था तो वो क्यों ना इस महल में घूम लेती। आज जो यहाँ वहां देख चल रही थी, सीढ़ियों पर नजर ना पड़ने से गिरती मुश्किल से खुद को 7वीं सीढ़ी तक रोकती है, मगर खुद को हिला नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मुंह से दबी दबी चीख निकलती है, मम्मा आई। कभी वो सर को पकड़ती, कभी कमर, कभी पांव पकड़ने की कोशिश करती। आरुष, मैसा, मूसा, आहान भागते उस तक पहुंचते हैं। वो उन्हें अध खुली आंखों से देखती बेहोश हो चुकी थी। अल्लाह, ये कैसे हुआ? ईगल! मूसा ईगल को चीखकर आवाज देता है जब वो ड्रेसिंग रूम से निकलकर भागकर बाहर आता है, क्योंकि वो मौजूद नहीं थी। यहाँ कमरा साउंड प्रूफ था, जिस वजह से वो कोई आवाज नहीं सुन पाया था। बाहर सबको सीढ़ियों पर मौजूद देखकर वो रफ्तार तेज करता उन तक आता है, मगर आरुष को वहां देखकर वो उन सब पर एक नजर डालता, उसे जल्दी से बाजुओं में उठाए कमरे में ले जाता है। मुझे कोई बताएगा वो गिरी कैसे? मूसा परेशान सा उसके सिरहाने खड़ा नम लहजे में पूछता है। यार, हम सब एक साथ थे, उसकी आवाज सुनकर आए, कोई नहीं जानता, वो होश में आएगी तो बताएगी। आहान उसे जवाब देता मैसा को देखता है, जो उसे चेक कर रही थी। मैसा? ईगल उन सबको एक नजर देखता मैसा को पुकारता है। ठीक है, अभी कुछ वक्त में होश आ जाएगा इंशाल्लाह, आमीन। वो तीनों मिलकर कहते हैं। ईगल उसके सिरहाने बैठकर उसकी गाल सहलाता है। गाइस, वो होश में आए तब मिलते हैं उसे, अभी चलो। मैसा उन दोनों को नजरों से समझाती कहती बाहर निकलती है। वो दोनों भी एक नजर डालते निकलते हैं। ईगल झुककर माथे पर बोसा देता, उस पर कंफर्टर ठीक करता है। जब वो हल्की हल्की आंखें वाक करती है, आह, वो बाजू पकड़े कराहती है। ईगल उसके सामने बैठता है। कहाँ दर्द है? वो उसकी गाल पर हाथ रखे नरम लहजे में पूछता है। वो आंखों से बाजू पर इशारा करती है। वेट, अभी मैसा आती है। वो उसका दूसरा हाथ प्यार से दबाता कॉल करता है। दूसरी तरफ से जवाब मिलता, वो फोन रखकर दरवाजा खोलता है, जहां से वो तीनों दाखिल होते हैं। मैसा उसे चेक करने के लिए बैठती है। फिक्र नहीं करो, जोर आ गया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये मेडिसिन लो और ये ऑइंटमेंट लगाना, कहो तो लगा दूं? उसके पूछने पर वो नाम में सर हिलाती है। तुम गिरी कैसे? मूसा उसके पास खड़ा होता पूछता है। वो मैंने सीढ़ियां नहीं देखी। तो वो मुश्किल से बात मुकम्मल करती गहरा सांस लेती है। तो अपना ख्याल नहीं रखा जाता, बता दो हम हैं। वो उसे डांट रहा था, जिस पर वो बस मुस्कुरा रही थी। उसकी डांट में छुपी फिक्र उसे बहुत अच्छी लगी थी। मैं ठीक हूँ, उसे और बोलते देख वो उसे टोक कर कहती है। डॉल, अब उठना नहीं। आहान आगे आता कहता है। मैसा तब तक बाजू बांध चुकी थी। मैं कर लेती। वो अपना बाजू देखकर कहती है। आई नो, बट तुम बस रेस्ट करो। वो मोहब्बत से उसका गाल छूती बोलती है। ईगल खामोश सा उन सब की दो
दिन में हो गई अटैचमेंट को देख रहा था। चलो इसे रेस्ट करने दो। अहान मूसा को पकड़े बाहर ले जाता है। पीछे मैसा भी मुस्कुराकर उससे ख्याल रखने का कहती बाहर निकलती है। उनके जाते वो उठने की कोशिश करती है। क्या तुम्हें हर चीज में जबरदस्ती पसंद है? ईगल उसके करीब बैठता सवाल करता है। मुझे नमाज पढ़नी, वजू करने जा रही हूँ। वो आराम से जवाब देती पाँव नीचे रखने की सिर्फ कोशिश करती है। जब वो उसे आराम से बाजुओं में उठाता है, वॉश बेसिन तक लाता है और आराम से खड़ा करता है। वो वजू करके मुड़ती है। जब वो दोबारा उसे बाजुओं में उठाए बाहर लाता है। मैं चल सकती हूँ, वो घूर कर कहती है, मगर वो इग्नोर करता उसे बेड पर बिठाता है। वो पास पड़ा बैग उठाती है, वो जो उसे एक हाथ से नहीं खुलता। तो वो कुनक्कियों से ईगल को देखती है जो उसे मुस्कुराते देख रहा था। वो दांतों तले लब दबाए बैग उसे देती है। वो बैग लेता है, जाए नमाज निकालता उसके लिए बिछाता है, बिछाकर वापस उसके पास आता, हाथ पकड़ता है, जाए नमाज तक लाकर छोड़ता है और आकर बेड पर बैठता फोन निकालता है ताकि वो आराम से नमाज अदा कर सके। वो बैठकर नमाज अदा करती है। वो शाम में एक हाथ से फ्रेश होकर बाहर आती है, मिरर के सामने आ जाती है, एक हाथ से कैचर निकालती, सामने रखती और बालों को झटक कर खोलती, आगे करती, बमुश्किल उसमें ब्रश करती है। जब ईगल स्टडी से निकलता है, आरुष तो इस कमरे को भूल भुलैया कह रही थी। इतना सब एक कमरे में और इसे बालों से जंग लड़ता देखता है। इश्क में निगाहों को मिलती हैं बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा है दिल तेरी ख्वाहिशें। वो उसके करीब आता, उसके हाथ से ब्रश लेता, बाल पीछे करता है। मैं कर लूंगी। वो मुड़कर ब्रश लेती, आंखें छोटी किए कहती है। वो उसे हंसा में लेता, उसकी पीठ सीने से लगाता है और बाल पकड़कर जूड़ा बनाता, सर पर दुपट्टा करता है। डोंट टच मी। वो जल्दी से होश में आती, उंगली दिखाकर कहती है। वो उसकी उंगली को अपनी शहादत की उंगली से नीचे करता, उसके चेहरे की तरफ झुकता है। बिहेव। आइंदा ना ऊंची आवाज, ना ही ये उंगली उठाना। मैं एक बार वार्न करता हूँ, अगली बार काट दूंगा। वो सर्द आवाज में कहता, उसकी उंगली छोड़ता, बाहर निकल जाता है। अजीब बंदा है यार, शोहा कहीं का। वो उसके जाते बड़बड़ाती बाहर निकलती है। आराम से सीढ़ियां उतरती, वो लिविंग एरिया तक आती है जहां वो तीन बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वापसी के लिए मुड़ती है। अरे आरुष, कहाँ जा रही हो? मूसा की उस पर नजर पड़ती है तो खड़े होता उसे पुकारता है। वो आप बिजी थे तो उसे मुड़कर जवाब देती है, अरे आ जाओ डॉल, हम बिजी नहीं। अहान उसे अंदर बुलाता है तो वो गला तय करती अंदर दाखिल होती है। ठीक हो ना? मैसा उसे अपने पास बिठाती पूछती है। आपने दवाई दी, आप डॉक्टर हो? मैसा का दवाई देना याद करती उसे पूछती है। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुस्कुराकर जवाब देती है। वो फीमेल डॉक्टर अच्छी होती है। वो उसे देखकर कहती है, क्या मतलब? इसके सामने उसके शोहर नामदार की बेइज्जती। मूसा इसकी बात सुनता रिहाई देता कहता है, जिस पर वो दांतों तले जबान देती, आंखें छोटी किए मैसा को देखती है। मैं तो मजाक कर रही थी। वो फौरन बात संभालती है कि कहीं कुछ उठाकर ही न मार दे। शौहर की यूं बात थी। अरे कुछ नहीं होता, वैसे कौन सा वो कम खड़ूस है। अहान भी बाद में हिस्सा डालता है। उसके खड़ूस कहने पर जहां मैसा पास पड़ा कुशन उसे मारती है, वहीं आरुष मुंह खोले उन्हें देखती है। वो मुझे पूछना ये था, वो उस जिन से भी ज्यादा खड़ूस है। आरुष की गौहर अफशानियां सुनकर जहां ईगल अंदर आता ठटक कर रुकता है, वहीं उन तीनों की छत फाड़ कहकर गूंजता है, उफ, तुम्हारे जिन से ज्यादा कोई कुछ नहीं यहाँ। मूसा पेट पकड़कर हंसता हुआ बोलता दोबारा हंसने लगता है जब ईगल अंदर दाखिल होता है। उफ, उस जिन ने सुन तो नहीं लिया। वो मूसा को मुंह के आगे हाथ रखती सरगोशी के अंदाज में कहती है, दुआ करो ना सुनाओ वरना अल्लाह ही खैर करे। वो हाथ उठाता उसे जवाब देता है, जिस पर वो बस उसे घूर कर रह जाती है और वो उसके सामने बैठता है। वो सामने सोफे पर टांग रखे बैठा अपनी नजरें उस पर मरकूज किए हुए था। अहान उठकर उसके पास बैठता है। वो न जाने किस जबान में बात कर रहे थे। अहान कोई सवाल करता नजर आ रहा था जिसका जवाब ईगल दे रहा था। वो बस आंखें खोले उन्हें देख रही थी। फिर वो सवालिया नजरों से मैसा और मूसा को देखती है। ईगल की नजरें उसी पर थी। वो शायद आया ही उसके सर पर बम फोड़ने था। मैसा और मूसा श्यान को देखते हैं और उन्हें इसी जबान में कुछ कहकर खामोश कराता है। आरुष। अहान ईगल का इशारा समझते उसे पुकारता है। जी। वो उसके पुकारने पर उन दोनों को देखना छोड़ अहान को देखती है। वो बोलते रुककर ईगल को देखता है, जिस पर वो अपनी सर नजरों से उसे कुछ समझाता है। तुम ये लैंग्वेज जानती हो जो हम बोल रहे हैं? वो बात घुमाकर करने की कोशिश करता है। नहीं। वो जवाब देती मूसा को देखती है। उसे अजीब सी फीलिंग होने लग गई थी उसके पूछने पर। डॉल, ये ओमान में बोली जाती है। जिस पर वो भवें उचकाती है। तो मतलब हम ओमान में हैं। जिस पर वो शौक होकर उसे देखती है। कहीं सुनने में तो गलती नहीं हुई? वो लोग बड़ी आसानी से उसके सर पर बम गिरा चुके थे। वेट, क्या मतलब? मैं ओमान कब, कैसे? बेहोश थी तो मुझे यहाँ। वो मुश्किल से रुकती बोली शौक की कैफियत में, आखिर में यहाँ कैसे आई? सोचकर वो माथे को सहलाती है। खामोशी से उठकर वो कमरे में चली जाती है। अहान, तुम्हारी जबान लड़खड़ाने और बात बदलने का मकसद
ईगल सख्त लहजे में अपनी हाथ में पहनी अंगूठी घुमाता दरियाफ्त करता है, जिस पर वो सर्द आह भरकर रह जाता है। वो उठकर अपने कमरे में चला जाता है। मूसा भी बाहर निकल जाता है। मैं आरुष के पास जाऊं? मैसा खड़े होते पूछती है, जिस पर वो पलक झपककर इजाजत देता बाहर निकल जाता है। आरुष? मैसा कमरे में नॉक करके आती उसे आवाज देती है, जो इशा की नमाज अदा कर रही थी। उसे नमाज पढ़ता देख वो पास बैठ जाती है। आरुष तहम्मुल से नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाती है, मगर बगैर कुछ मांगे हाथ वापस रख देती मैसा को देखती है। दुआ नहीं मांगोगी? वो उसे बगैर दुआ मांगे देख मैसा उसके पास घुटनों पर बैठती पूछती है, जिस पर वो नफी में सर हिलाती है। उठकर नमाज तय करती सोफे पर रखती बैठती है। मैसा भी साथ बैठती है। इतना खामोश मत रहो आरुष, कुछ कह लो। इतनी खामोशी खोखला कर देती है। रो लो। आई नो कि ये सब बहुत अजीब है। अजीब नहीं, जिंदगी काफी तेज रफ्तार में भागना शुरू हो चुकी है और मुझे पीछे छोड़ चुकी है। हम नहीं चुनते रास्ते, रास्ते हमें चुनते हैं। हमारी जिंदगी काफी रास्तों के साथ चलती है। मेरी जिंदगी भी काफी रास्तों को पकड़े हुए चलती थी, मगर अब सिर्फ एक ट्रैक है। मगर वो अनजान है। अनजान रास्तों पर भटक सकते हैं और मुझे भटकने से डर लगता है। यूं कह ले खौफ आता है, क्योंकि उनकी मंजिलें कबूल नहीं करती। रास्ता भी मुश्किल होते हैं, कदम कदम पर रुकावट डालते हैं। मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी रुक गई है, जो कभी नहीं हुआ। भला जिंदगी भी रुकती है? वो तो किसी के मरते वक्त नहीं रुकती। मैं खामोश इसलिए नहीं कि मैं डरती हूँ। मसला आप सबके सच्चे खलूस का है। मैं कुछ नहीं बोली, मेरे अल्फाज नहीं थे या साथ छोड़ दिया था। वो शख्स कौन है जो अब मेरे वजूद का मेरा हमराज है? मैं सच्चाइयों से वाकिफ लड़की हूँ। लड़कर, झगड़ कर, चीख कर, कुछ गलत कर कर क्या साबित करूंगी? गुस्सा वो तो हराम है, तो सिर्फ अपनी तबीयत को बेइज्जत करूंगी। उसे क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। इसलिए लफ्जों को नहीं ढूंढा और खामोश हो गई। हाँ, कुछ खामोशियां चीखती हैं आप में, और ये खामोशियां चीख रही हैं। मैं कभी मामा, बाबा, भाई से एक दिन भी सही से दूर नहीं रही, और मैं अपने मुल्क में भी नहीं, तो मेरे लफ्जों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। आज मुझे मेरा वजूद बेमानी लगा, जैसे मेरे एहसासात की किसी को कोई वैल्यू नहीं है। आप सब बहुत अच्छे हो, मगर मैं खुद को आप में देख नहीं पा रही। मैं जब से ये हुआ खामोश हूँ। तो क्या बोलूँ, किसे बोलूँ, समझ नहीं आता। मैं सबको बहुत याद कर रही हूँ। बोलते बोलते उसकी सब अपनों को याद करते आवाज रंज जाती है, जो वो अटक कर मुकम्मल करती है। मैसा बगैर बोले उसे गले लगा लेती है। उसे एक ऐसे नहीं लाना चाहिए था। वो उसके गले लगी, अब तक के रोके आंसुओं को बहाती कहती है। वो बस उसकी पीठ सहलाती उसे सुनती रहती है, क्योंकि वो खामोशी से बीमार भी पड़ सकती थी। उसे खामोश कराती मैसा उसे पानी का गिलास देती है, जो वो 2 घूंट पीती वापस करती है। मैसा उसे उठाती बेड तक लाती है, कंफर्टर में घुसाती है। चलो आराम करो, माइंड को रिलैक्स करो, उसे प्यार से समझाती। तकिए पर सरकती, कंफर्टर उड़ाती बाहर निकल जाती है। वो बाहर निकलकर बेसमेंट का रुख करती है। वो जानती थी वो तीनों अब वहीं मौजूद होंगे। वो अंदर दाखिल होती है, जहां वो तीनों उसके आते उसे देखते हैं। मैसा, क्या वो ठीक है? आहान परेशान सा पूछता है। क्या वो रोई? क्या वो जाने की बात कर रही थी? मूसा की आवाज में परेशानी के साथ जाने का डर भी था। ये जानते ईगल की इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं करते, तो वो कैसे? वो वैसी नहीं जैसी हमारे सामने है। वो बहुत टूटी हुई है। उसके लहजे में दर्द था बहुत, और वो बिल्कुल वो आरुष नहीं लगी जिसको हम देख रहे थे। वो तो एक जिंदगी के वाकयात से बाखबर हर हकीकतों में जीने वाली है। आज मुझे उस लड़की में एक मजबूत, पीछे न हटने वाली लड़की दिखाई दी। मैसा आंखें बंद करती बोली जा रही थी। ईगल की आंखें हर लम्हा सर्द हो रही थी। मूसा और आहान एक सख्त नजर ईगल पर डालते बाहर निकल जाते हैं। सभी अफसोस से उसे देखती बाहर निकल जाती है। ईगल उन सबके जाते गहरी सांस लेता कमरे का रुख करता है। वो उसके जाते बस छत को घूरे जा रही थी, जब उसे किसी के कदमों की आवाज कमरे में आती सुनाई देती है। वो आंखें बंद करती मुंह पर कंफर्टर खींचकर ढा लेती है। शायद वो आने वाले को जानती थी। ईगल अंदर दाखिल होकर कमरा बंद करता बेड की तरफ बढ़ता है और आरुष के बिल्कुल साथ बैठकर उसके चेहरे पर झुकता है। सांस लो, वो गंभीर आवाज में कहता है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट होती है। वो उसके करीब आने पर सांस रोक चुकी थी। ईगल उसके हाथ से कंफर्टर लेता, चेहरे से हटाता है और हल्की सी फूंक उसके चेहरे पर मारता है, जिस पर वो फौरन आंखें खोलती सांस खींचती है। उसकी आंखों उसकी सहरज़दा गहरी काली आंखों से टकराती हैं और उसकी आंखों में देखकर बस यही सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि वो जाग रही है। वो उसे धक्का देने के लिए उसके सीने पर हाथ रखे पीछे करने की कोशिश करती है, जब वो और करीब होकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेता है। हटो, वो शदीद मजामत करती है। उसे हटाने की कोशिश में हलकान होती है,
मगर वो खामोशी से उसमें गुम हो चुका था। पाकिस्तान। अरूश की वालदा जाए नमाज पर बैठी नवाफिल अदा कर रही थी। जब उसका भाई अंदर दाखिल होता है, वो अपने पापा के पास बैठता कुछ बोलता है, जो उदास से बैठकर उसे टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे थे। वो कुछ कहकर उन्हें बाहर बुलाता है। अरूश की वालदा सलाम फिर कर उन्हें बाहर जाता देखती हैं तो दुआ मांगती उठकर जाए नमाज जगह पर रखती बाहर निकलती हैं। जहां वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे, वो भी उनके नजदीक जाकर खड़ी होती है। उनके शौहर परेशानी से पेशानी मसल रहे थे और बेटा फोन पर किसी से बहस कर रहा था। वो मौजूद जान गई थी। अब तो सिर्फ अरूश का ही मौजू रहता था। परेशानी में वो लोग खाना पीना आराम करना छोड़ चुके थे। वो अपने बेटे की तरफ मुतवज्जा होती हैं, जो गुस्से में फोन बंद करता उनके पास आकर सोफे पर बैठता है। ये कैसा काम कर रहे हैं ये लोग? वो अरूश को मुल्क से बाहर ले गया है। कहा कोई मजाक है क्या, या कोई फिल्म है? काश बाबा हमारे बस में होता सब। अभी वो और कुछ कहता जब फोन वाइब्रेट होता है। किसी नंबर से उसे वीडियो मौसूल हुई थी जो डाउनलोड हो चुकी थी। वो कभी ना देखता अगर उसमें आरूश नजर ना आती। वो वीडियो को ओपन करता है जहां आरूश मैसा और मूसा से मुस्कुराकर बात कर रही थी। बाबा ये देखिए, आरूश बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी ने वीडियो भेजी है। वो वीडियो अपने वालिद को दिखाता खुश होकर बताता है, बेटा कॉल करो देखो कौन है। और वीडियो भेजने का मकसद, उसके वालिद वीडियो देखकर उसे परेशानी से कहते हैं, जिस पर वो फौरन उस नंबर पर कॉल करता है जो दूसरी बेल पर उठा ली जाती है। शायद सामने वाला जानता था कि वो फोन करेंगे। उमान। अहान इस्तराबी कैफियत में अपने कमरे में यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था जब मूसा नॉक करके अंदर दाखिल होता है। परेशान हो? मूसा उसका चेहरा देखकर बेड पर बैठता पूछता है, यार परेशान कैसे न हो, मुझसे शायद बात भी न करे। वो इतनी मासूम है, किसी के भी दिल में जगह बना सकती है। वो छोटी सी बहन है जिसका मैंने दिल दुखाया, शायद वो मुझे देखना भी न चाहे। वो अपनी परेशानी बताता पेशानी मसलता है, यार एक्चुअली एक काम करवाना था। मूसा फोन निकालता कहता है, क्या? वो सवालिया नजरों से उसे देखता है। यार यहाँ वो परेशान है, वहां उसकी फैमिली, उन्हें रिलैक्स करने के लिए एक वीडियो भेजे। वो वीडियो सामने करता कहता है वो उसे फोन लेकर देखता भेज देता है, यार देख लो ईगल नाराज ना हो। उसके वीडियो भेजने पर मूसा कहता है, नहीं होता, रिलैक्स, और सीन भी हो गया। वो उसके मैसेज सीन होने का बताता है जब अचानक कॉल आती है। उठा रहा हूँ, खामोश रहना। वो उसे कहकर कॉल रिसीव करता है। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी सुनकर वो पहल करता है, मेरी बहन कहाँ है, कैसी है वो? दूसरी तरफ से उसके भाई की गुस्से भरी आवाज आती है, वो ठीक है, हमारे साथ है। ये वीडियो भेजने का मकसद यही है, परेशान ना हो, वो महफूज है। वो उसे तहम्मुल से जवाब देता है, महफूज? वाह, तुम लोगों के पास जो लोग जबरदस्ती निकाह कराते हैं, साथ ले जाते हैं, तब भी दिल नहीं भरा तो मुल्क से बाहर ले गए। कितनी अजियत देनी है उसे और हमें, हमसे हमारी बहन हमारी बेटी लेकर ये कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरूश का भाई तो भरा बैठा था, देखो वो हमारे पास महफूज है। तुम भाई हो तो वो मेरी भी बहन है, बेटी जैसी है, अपनी जबान को लगाम दो। आन उसे सर्द आवाज में ऊंची आवाज में बोलता है, बहन बेटियों को ऐसे नहीं ले जाते। उसे उसके वालिद की कमजोर सी आवाज सुनाई देती है, अंकल देखें वो बिल्कुल महफूज है, वो मेरी बहन है, मैं बड़े भाई जैसा हूँ। एक छोटा भाई है, बहन है, उसका मुहाफिज शोहर है। परेशान ना हो, आपके बेटे जितना हूँ, एक बार यकीन कर ले, मैं जल्द आपकी बात कराऊंगा आरूष से। आहान के लहजे में छुपा एहतराम देखकर वो आराम से खुदा हाफिज करते फोन रखते हैं। उन्हें यकीन हुआ। मूसा पेशानी पर सिलवटे लिए पूछता है, हाँ हो गया होगा, बाकी मैं कल आरूष से बात कराऊंगा। वो बेड पर लेटता कहता है उस सर को खम देता बाहर निकल जाता है और आहान की नींद तो न जाने कहाँ सो गई थी। वो छत को घूरता उन डरी सहमी नजरों के हसार में हर रोज की तरह आज भी कैद था। पाकिस्तान। आपने फोन क्यों रख दिया? मुझे सुनाने देते। उसके भाई को सुकून ही नहीं मिल रहा था। इकलौती जवान बहन थी जिसे कोई अनजान शख्स आया और ले गया इतनी दूर। बस करो। उसके लहजे का एहतराम उसकी सच्चाई बयान कर रहा था। मुझे यकीन करना पड़ा। इंशाल्लाह वो हमारे आरूष को महफूज रखेंगे और वो हमसे बात भी करेगी। वो उसे डपट कर खामोश कराते कमरे में चले जाते हैं। माँ, आप भी बाबा की साइड हो? वो अपनी माँ के पास सोफे पर बैठते ये पूछता है। हाँ बेटा, मजबूरी है, यकीन करना पड़ेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। वो उसके सर पर प्यार करते कमरे में चली जाती है। उसका भाई वो नंबर इंस्पेक्टर को सेंड करता बाहर निकल जाता है। उमान। वो उस पर ऐसे ही झुके उसके खुले बालों में मुंह दिए हुए था। शायद उसे उसकी खुशबू हमेशा मदहोश करती थी। हटो। आरूष अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का देकर दूर होती है। वो खाली नजरों से उसे देखता है। आरूष उसकी ब्लैंक आंखें देख खुद में कब कभी महसूस होती है जैसे उसके यूं देखने से उस पर तारी हुई हो। मुझसे दूर जाने के ख्याल इस जहन से झटक तो वो उसे बाजू से खींचकर करीब करता, बाजू कमर पर बांधकर एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर अदा करता है। वो उसकी इन खाली निगाहों में बस एक लम्हे देख निगाहें हटा लेती है।
وہ اپنا بازو چھوڑتی دوبارہ لیٹ جاتی ہے، چھڑواتی دوبارہ لیٹ جاتی ہے، وہ بھی دوسری طرف آتا لیٹ جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر خود میں بھینچے کمفرٹر ڈالتا آنکھیں موند لیتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتی، اس لیے سونے کی کوشش کرتی ہے۔ رات کے کسی پہر عروج کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے وہ آنکھیں کھول کر اپنے پاس دیکھتی ہے، مگر وہ موجود نہیں تھا۔ وہ باہر جا رہا تھا، مگر اس وقت یہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ وہ خود سے سوچتی، پاس پڑی شال اٹھا کر اوڑھتی اس کے پیچھے نکلتی ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتا ایک جگہ رک جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اندر چلا جاتا ہے۔ عروج بھی دھیمے دھیمے قدموں کی رفتار تھوڑا تیز کرتی دروازے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ نیچے سیڑھیاں اترتی تھی تو وہ بھی سیڑھیاں اترتی نیچے آتی ہے۔ نیچے بیسمنٹ تھا اور بیسمنٹ کی لیفٹ سائڈ ایک دروازہ کھلا تھا، یقیناً وہ دیوار میں خفیہ تھا۔ وہ اس دروازے سے نکلتی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ جب کچھ فاصلہ طے کرتی وہ ایک گھر کے سامنے رکتی ہے۔ اس نے پیچھے سے اسے یہیں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ پر جیکٹ پہنے شال بازو پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اس گھر پر نظر ڈالتی ہے، 2 منزلہ وہ گھر نہایت ہی خوبصورت ہوگا، مگر اس وقت وہ کافی میلا سا تھا، اندھیرے میں ڈوبا، جیسے یہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ تو وہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ تجسس کا شکار ہوتی اندر قدم رکھتی ہے جہاں بہت اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی اپنا فون پینٹ کی جیب سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اسے نیچے کچھ محسوس ہوتا ہے وہ چیخ کر آگے بھاگتی کسی کے مضبوط سینے سے ٹکراتی ہے۔ وہ کولون کی خوشبو پہچانتی اس کے سینے میں چھپ کر پاؤں بھی اس کے پاؤں میں رکھ دیتی ہے۔ وہ اس کی موجودگی پر اسے سنانے لگا تھا، اسے ڈرتا دیکھ بازوؤں میں قید کرتا اوپر اٹھا لیتا ہے۔ وہ اس کی جیکٹ سے بازو کو گزار کر حصار میں لیتی اس کے سینے میں دبکی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کوئی بچی لگ رہی تھی۔ وہ ویسے ہی اس میں چھپی اسے پکارتی ہے، جیسے وہ جواب دیے بنا اسے بازو میں لیے اندھیرے میں بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ پاؤں سے کھولتا اندر داخل ہوتا ہے، بیڈ پر اسے بٹھاتا ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو جلدی سے کمپوز کرتی ہے اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ چاند کی روشنی کھڑکی کے ذریعے ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جس سے شیان کا چہرہ واضح تھا، اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرا پیچھا کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھتا ہے۔ لب کاٹنے لگتی ہے۔ وہ اس کی حرکت پر جھک کر ہونٹوں کو دانتوں سے آزاد کراتا اسے کھڑا کرتا ہے۔ وہ میں ایسے ہی بس تم آ رہے تھے تو تجسس سے پیچھا کر لیا، یہ کس کا گھر ہے؟ وہ اسے گھما کر جواب دیتی پوچھتی ہے، کیونکہ وہ کافی پرانا تھا، ہاں مگر خوبصورت تھا، جسے بہت محبت سے سجایا گیا تھا۔ وہ یہاں آتے یہ محسوس کر چکی تھی۔ اس کے سوال پر وہ آئی بروز کہتا ہے، کسی کا نہیں، واپس جاؤ، احان کو بلاتا ہوں۔ وہ اسے سرد آواز میں کہتا فون نکالتا ہے، مگر مجھے نہیں جانا، صحیح سے بتاؤ کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھتی، اس کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتی پوچھتی ہے، جس پر وہ سر داپ بھر کر رہ جاتا ہے، چلو یہاں سے۔ وہ اسے زبردستی گود میں اٹھائے باہر نکلتا ہے، چھوڑو، نیچے اتارو۔ وہ پاؤں جلاتی اسے گھورتی کہتی ہے، اتار دو نیچے۔ وہ باہر آ کر کہتا اسے پوچھتا ہے، اتار دو نیچے۔ وہ باہر آ کر رکتا اسے پوچھتا ہے۔ وہ نیچے اندھیرے میں دیکھ کر خاموش ہو کر پاؤں چلانے بند کرتی ہے تو وہ بھی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ وہ اس لیے سارے دروازے اس ریموٹ دے کر بند کراتا کمرے میں آتا ہے۔ اتنے وقت میں وہ اب تک اس کی گود میں ہی تھی۔ اب کیا ساری زندگی اٹھا کر رکھنا ہے؟ اتارو نیچے، وہ خوخار نظروں سے اسے گھور کر کہتی ہے، جس پر وہ اسے لا کر بیڈ پر سلاتا اس کا منہ دبوچتا ہے، میرے سے میرے معاملوں سے دور رہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا اسے چھوڑتا واش روم میں بند ہو جاتا ہے۔ وہ غصے سے شال اٹھا کر پھینکتی، شوز اتارتی، کمفرٹر منہ تک ٹانے سوتی بنتی ہے۔ وہ باہر نکل کر ایک نظر کمفرٹر میں سوئی عروج پر ڈالتا، فون وغیرہ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا، اپنی جگہ سو کر اسے کھینچ کر اپنے حصار میں دیتا سوتا بنتا ہے، مگر وہ اس کی مزاحمت پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا ہے جو اسے گھورتی خود کو چھڑانے کی جدوجہد میں تھی۔ وہ اسے جھٹکا دیتا اور قریب کرتا ہے، جس سے وہ پوری قید ہو جاتی ہے، مگر اسے خود کو گھورتا پا کر سوتی بنتی ہے۔ وہ بھی کمفرٹر کو صحیح اس پر کرتا آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر دستک سے کھلتی ہے۔ وہ اکیلی کمرے میں موجود تھی، دوپٹہ صحیح کرتی دروازہ کھلتی ہے، جہاں سامنے مہسا کھڑی تھی۔ اٹھ گئی، شکر ہے، اس کا دروازہ کھولتی کہتی ہے، جس پر وہ وقت پر نظر ڈالتی ہے جہاں 11 بج رہے تھے۔ چلو ریڈی ہو کر آؤ، بریک فاسٹ ریڈی ہے۔ وہ اس کا گال پر پیار سے چھوتی چلی جاتی ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے کا رخ کرتی ہے۔ اس نے یلو فراک پر بلیک ٹراؤزر، اورنج اسکارف اور شال کندھے پر لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل تک پہنچتی ہے، جہاں وہ چاروں فرش سے موجود تھے۔ وہ ایگل کے ساتھ والی چیئر چھوڑتی میسا کی لیفٹ سائڈ پر بیٹھتی ہے، جس پر وہ تینوں ہنسی روکتے اور ایگل اور اسے پھر اس خالی چیئر کو دیکھتا ہے۔ وش وہ پہلی بار اس کے نام سے پکارتا ہے، وہ بھی ادھورا۔ وہ کلس کر رہ جاتی ہے کیونکہ اس کی پکار نرم تھی، رات جیسی سرد نہیں۔ جی
वो लठमार अंदाज में जवाब देती है, अपनी जगह पर आओ। वो उसकी जेब पर उंगली से इशारा करता है, जिस पर वो आईब्रो उठाकर उसे देखती है। मैं यहीं ठीक हूँ, वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहती है, जिस पर उसे वार्न करने वाली नजरों से देखता है। वो उसे कोसती उठकर उसकी जगह बैठती है, क्योंकि वो इन तीनों के सामने बुरी नहीं बनना चाहती थी। डॉल, आहान हिम्मत करके उसे पुकारता है, जिस पर उसे देखकर जी कहती है। उसके लहजे में कहीं कोई नाराजगी नहीं थी, जिसको देखकर वो सुकून का सांस लेता उसे प्लेट पास करता है, जिस पर वो मुस्कुराकर शुक्रिया कहती ले लेती है। वो अंदर से चाय जितनी टूटी हुई थी, किसी को खबर तक नहीं होती थी। वो हमेशा हंसती थी, मुस्कुराती थी। उसका ये मतलब नहीं था कि वो उदास नहीं होती थी, वो शायद इन उदासियों को हंसती मुस्कुराती डालना चाहती थी। वो ब्रेकफास्ट करके लिविंग एरिया में बैठे थे। ईगल अभी कहीं से जाकर आया था। आहान के साथ मैसाकर पर बात करके बैठी थी। वो मूसा से हल्की फुल्की बातें करती रही थी। अब वो मैसा के साथ ईगल सामने आहान और मूसा के साथ बैठा था। मूसा लाजमी कोई मौजूद छेड़ चुका था। अरूश बोर हो रही थी, जिस पर आहान और मैसा से देखकर रह जाते हैं। मूसा के सवाल पर वो हाँ में सर हिलाती है, जिस पर ईगल अंदर से गाल को दांतों तले दबाए हंसी रोकता है। वो लगती क्यूट थी ऐसा करते, तो बताओ क्या करें? वो सोचने वाले अंदाज में थोड़ी पर उंगली रखे पूछता है। लूडो खेलने से रहे, आप ही बताओ। वो मुंह फुलाकर कहती है, अरे चलो लूडो खेले। मैसा उसे उदास देखकर कहती है, क्योंकि वो दिखाने के लिए ही मुस्कुरा रही थी, मगर सामने मौजूद लोगों से नावाकिफ थी। यहाँ लूडो या फोन में? वो उसके सवालिया नजर से देखकर पूछती है। अरे अभी आ जाएगी क्या मूसा? वो तस्दीक के लिए उसे भी शामिल कर लेती है। हाँ अभी लो, वो कहकर फोन पर एक मैसेज छोड़ता है और अगले 15 मिनट में लूडो हाजिर थी। आहान दोनों हाथ उठाकर सोफे पर बैठता है, मगर मूसा उसे खींचकर साथ बिठाता है। वो चारों लूडो को टेबल पर रखे इर्द गिर्द बैठे थे। ईगल सोफा पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मगर एक चोर नजर उस पर भी डाल लेता, जो उसे देख तक नहीं रही थी। तो कोई न्यू स्टाइल हो लूडो का? मूसा लूडो खेलने से पहले पूछता है। क्या मतलब? आरोश आंखें चुकीती पूछती है। वो दोनों भी सवालिया नजरों से देख रहे थे। देखो, जिसकी गॉड पक्की हो गई वो किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, चाहे टीम से बाहर हो, ओके? और जिसकी मारी गई है उसे भी कोई कुछ भी मांग सकता है। बताओ मंजूर है? वो सब कुछ जल्दी से बताता है। गोटियां हाथ में उछालता उनसे पूछता है, ओके? वो तीनों हामी भर लेते हैं और मूसा सारी गोटियां घरों में रखता छक्का डब्बी में डालता है। मैं येलो लूंगी। आरुष येलो कलर अपनी तरफ करके कहती है, क्यों भाई ये मेरा है, मेरी जायदाद पर नो कब्जा। मूसा अपनी साइड पर दोबारा करता उसका कलर से वापस देता है। नो, मैं येलो लूंगी, क्योंकि वही स्टार्ट करता है। वो वापस उसे लेती सुनाती है, नहीं मैं शुरू करूंगा, ये मेरा कलर है। वो भी उसे जिद लगा बैठता है, जिस पर वो निचला होंठ ऊपरी होंठ पर रखे मासूम शक्ल पर आकर आहान को देखती है, तो फौरन से लूटो घुमाता उसे येलो कलर देता है। देख ये तेरा मामला नहीं, उसे मुक्का दिखाकर कहता है, आराम से बैठ, जो लेना है चाहे लेने दो। आहान उसकी गर्दन में हाथ डालता समझाता है, जिस पर वो मुंह के जावे बनाता और रूश वाला कलर लेता है, जिस पर वो अपनी गांठियां घरों से निकाल चुके थे। अब मूसा अपनी बारी खेल रहा था और ये गई आहान की गौट घर में। वो मुंह बनाता अपनी गौट देखता है, जिसमें मांगोगा इसे तो मैं मांगूंगा। मूसा बाजू फोल्ड करता अकड़ कर कहता है। अरुष और मैसा हामी भर लेते हैं, चल दे अपनी घड़ी। वो हाथ आगे करता उसे तपाने वाले अंदाज में कहता है। वो उसे गुस्से से घूरता अपनी घड़ी उतारकर जोर से उसके हाथ पर पटकता है। चलो फिर स्टार्ट करें। मैसा डब्बी उठाती इन सबको मुतवज्जा करती है। यस गई आरुष की। मैसा हवा में मुक्का मारे पुरजोश होकर उसे देखती है। मैं क्या करूं, मैं क्या दूं? आंखों को बड़ा करती पूछती है। तुम? वो थोड़ी पर हाथ रखे पूछती है। हाय, बालों को बड़ा करने का कोई तरीका दे दो। वो उसका हाथ पकड़े मिस्किन सी शक्ल बनाती है। हा 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 हा। वो सर चढ़कर हंस देती है। क्या मतलब? आहान और मूसा एक जबान होकर पूछते हैं। यार मुझे बड़ी बात चाहिए। वो आरुष के हिजाब से छुपे बालों की तरफ इशारा करती कहती है। ओहो, दो खींच कर बड़े कर दो। मूसा दोनों हाथ से खींचने वाले इशारा करता है। अल्लाह मेरे खुद हुए, तंग नहीं करो। वो प्यार से पहले मैसा को जवाब देती, फिर मूसा को घूर कर कहती है। हो। आहान आरुष की गोटी मारता अफसोस से उसे देखता है। बताएं आपको क्या चाहिए? वो एहसान करने वाले अंदाज में कहती है। मेरी जगह शियान लेगा। वो शियान की तरफ इशारा करता है। शियान उसकी बात पर आईब्रोज गाता है। उसे देखकर उसके फोन की तरफ इशारा करता है। लेना था तो दिया क्यों? वो फोन उसकी तरफ गुस्से से फेंकती कहती है। फोन ईगल के पास गिरता है तो वो उठाकर जेब में रखता, दोबारा काम पर फोकस करता है। यस गई। अरुष मूसा की गोट मारकर खुश होकर कहती है। मेरी जगह अपने जिन से लो।
वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा होता शेर पास बैठकर कहता है, क्यों आपकी गोट गई? वो खुहार नजर से घूरती है। हाँ तो ये मैंने बताया था, वो कमाल बेनियाजी से जवाब देता है। वो आंखें सुखेड़कर ईगल को घूरती है। वो भी इसी लम्हे से देखता है। वो आईब्रोज करता उसके बोलने का मुंतजिर होता है। वो उसको घूरती कोई नजरों से उसका हाथ में रिंग देखती है। वो गोल्डन कलर की रिंग जिसका डिजाइन ईगल जैसा था, बिल्कुल ईगल बना हुआ था। ये वो उसके हाथ की दूसरी उंगली में पहनी इसी रिंग पर इशारा करती है। मैसा, अहान, मूसा चौंक कर उसे देखते हैं। कुछ और मांगो डॉल, अहान हल्की आवाज में कहता है। ये नहीं मिलनी। इसने अपनी पूरी जिंदगी इस रिंग को नहीं उतारा। सबने मांगी मगर नहीं। मैसा उसके कान में सब बताती है। मिल ही ना जाए, मूसा उसे जबान चढ़ाकर कहता है। तो वो उदास होकर उसे देखती है। ईगल अपना वही हाथ आगे करता है। वो तीनों हैरानी से उसे फिर उसके बड़े हाथ को देखते हैं। आरूश खुश होकर हाथ आगे करती है मगर वो उसे आंखों से खुद उतारने का कहता है। मूसा उठकर अहान के पास जाता है। हमें तो इस जोरू के गुलाम ने कभी न दी, बल्कि मुक्के भी पड़े। वो उसका गाल पर पड़ा मुक्का याद करता है। शान उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है। उतारो। वो नरम लहजे में हाथ आगे करता है। वो हिचकिचाते मैसा को देखती है जो हाँ में सर हिलाती है। तो वो उसका हाथ को बगैर छुए अपना अंगूठा और अपनी शहादत वाली उंगली से रिंग पकड़ती है।